वेलकम टू वर्ल्ड यूथ मॉडल यूनाइटेड नेशंस 2021 इस्तांबुल टर्की। इस साल के इवेंट में 130 डेलीगेट्स 40 ममालिक से अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने आए हैं। यहाँ पे ये दुनिया के करंट इश्यूज़ के बारे में डिबेट्स और डिस्कशंस करेंगे और उसके बाद होपफुली एक कलेक्टिव सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। मुझे इस ऑनर मिला इस बार कि मैं इस इवेंट का होस्ट बनूँ, तो आइए देखते हैं इस इवेंट में क्या होता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस इवेंट के चीफ गेस्ट मिस्टर इब्राहिम फफाना। वो एक NGO के हेड हैं, तो हम उनसे यहाँ बात कर रहे हैं। मिस्टर इब्राहिम, इट इज़ ए प्लेजर टू स्पीक टू यू टुडे। My first question to you is, what made you decide to be a part of an event like this? What inspired you to connect with the youth of tomorrow? My name is Ibrahim Lawson Fofana. I'm a United Nations Ambassador for Peace. I'm a human rights advocate and consultant. I'm the founder of the Lawson Fofana Charity Foundation. I am an humanitarian, and we are here to serve humanity. And part of serving humanity and defending international human rights, we need the involvement of tomorrow's leaders. So those are the youth. So I'm here, I'm inspired because I was once a youth when I started my foundation, and I wanted to share my story with the tomorrow leaders. That's why I'm here today, to be able to share my knowledge and my experience with our tomorrow leaders. And when you see an event like this, you saw how the discussions were happening, how the debates were happening, how the draft resolutions were being created. So how did it make you feel? Were the students doing good? Were the delegates doing good? They were doing excellent. Like I told you, our tomorrow leaders, they're going to be totally different because the youths, they are so powerful. They are bold. I don't know whether is it because of technology or is it because of the social media, but today's leaders, they will definitely be able to shape decisions tomorrow and make a bright decision and shape the future of our country. Because if we can empower our youth, they are going to be the forefront. They are going to be at the forefront for change and innovation. So we should definitely invest in our youths to empower them for them to be able to lead us tomorrow. And you yourself were a young leader who came into the role of a humanitarian from a very young age. You took it over from your father, actually. So what advice would you like to give to the delegates and the people watching at home to inspire them to bring change in their society and the world around them? My advice to the youth out there is believe in yourself. Be very passionate about everything you do. Just keep your mindset. If you put your mind to anything, you can do it. Like I said, our parents, my father, they didn't have any technology. Yeah. They didn't have social media. We have technology and social media at our fingertip. So that's an A+ for us. So I'm here today because I believe in empowering the youth. Because I know if we can empower our youths, they are going to carry the legacy tomorrow for any country to achieve its heights in developing, and accomplishing so many good things. So if we got good leaders, if we inspire and help our youths, we will have good leaders for tomorrow. Thank you very much, Mr. Ibrahim. It was a pleasure talking to you, and you're an inspiration to all of us. Thank you. Thank you so much. It's a pleasure to have me. Thank you. I appreciate it. Thank you, God sir. bless you. तो हमारे पास डेलीगेट हैं. What's your name again? Bunny Songare from Kenya. From Kenya. Yeah. So this is such a huge event that you're a part of. How does it feel? It feels really nice to be able to interact with people from different cultures, different nations. It's not usual for us to get such a platform, to interact with everyone because we come from like an African country. So it's a really wonderful experience. And how do you think the event is going? Are you enjoying? Yeah, I'm totally enjoying myself and I'm having a lot of fun. तो जो 130 डेलीगेट्स यहाँ पर हैं, उनमें से 30 जो हैं पाकिस्तानी हैं, उनमें से एक हमारे साथ आयशा है यहाँ पे मौजूद। तो आयशा, आपको ये इवेंट कैसा लग रहा है? मुझे इवेंट बहुत अच्छा लग रहा है. इट्स अबाउट मी फाइंडिंग माई सेल्फ, फाइंडिंग न्यू थिंग्स अबाउट मी, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, दैट आई एम इवॉल्विंग एज अ पर्सन. और आपके ख्याल में कितना ज़रूरी है यूथ के लिए इस तरह के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना कि वो दुनिया के इश्यूज़ के बारे में बात करें और उनके सॉल्यूशंस को डिस्कस करें? इट्स रियली इम्पॉर्टेंट दैट हम अपनी ज़ात में से निकल के सबके बारे में सोचें, और हमें बहुत ज़रूरी है कि हमारा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इससे एक्टिवेट होता है. एंड जब हम इकट्ठे मिल के वील वर्क टुगेदर एज अ यूथ है प्रोडक्टिवली, एंड वी विल वर्क टूवर्ड्स द सॉल्यूशंस.
और क्या ये आपका पहला MUN है या आपके इस तरह के इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं या नहीं? मेरा ये पहला MUN है, बट मेरे इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं बिकॉज आई हैव स्टडीड इन स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ इन लंडन. सो आई हैव एन exposure. I've done LLM international law, so I know how important is international law to basically resolve the global issues. So बहुत अच्छा हुआ आपसे मिलके. थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ प्लेजर. एंड थैंक यू कि आप पाकिस्तान का नाम इन तरह के इवेंट्स में रिप्रेजेंट कर रही हैं. थैंक यू. तो हमारे पास मंगोलिया से भी एक डेलीगेट यहाँ पे मौजूद हैं. इट्स लवली टू सी यू हियर. Especially in an event like this, what do you think is the importance of youth taking a part in the future of the world? Okay, for this conference, I think the most important thing is that cooperate and co-work on these challenging issues around the world, especially during this time, the COVID-19. I think the youth cooperation is really important on this issue. And how much potential do you think we have when it comes to changing the world for the better? I guess these conferences really had a big impact on the global approach and especially for youth. So in this framework, we are working hard on to tackle the and neglect issues, the impact of COVID on the refugees. So we are preparing on the resolution paper to be helpful for the UN agendas and UNHCR. तो हर इवेंट को सक्सेसफुल बनाते हैं वॉलंटियर्स. सो हमारे साथ मौजूद हैं सारा, जो इस इवेंट में एक वॉलंटियर हैं. सारा, हाउ डिड यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू वॉलंटियर एट एन इवेंट like this? Yes, hello everyone. It's good to be with you today, Mr. Yeah, I know from this with my friend. Yeah, Okay. yes, he's from Pakistan, and he told me about it. Yes. And how was the experience of working? I know it's quite a hassle because I've been part of the management as well. Yeah. So how is the experience of running around and doing stuff here and there and getting scolded sometimes as well? No, it's really a good experience. Actually, it's perfect for me because it's good to knowing other cultures and trying to help others, and it was really amazing experience for me. So are you going to become volunteering at an event like this next time, or are you just done after this one? So I would love to really. तो हमारे साथ मौजूद हैं एक और वॉलंटियर हसाम. हसाम, क्यों सोचा कि वॉलंटियर करना है? मतलब रगड़ काफ़ी नहीं हो गई आज? काफ़ी हो गई है, लेकिन इतना नहीं, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस रहा. और अच्छा है कि हमें और चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तो इसी वजह से मैंने ये किया. वॉलंटियर मैं भी हूँ, मतलब डिप्लोमेटिक होने की ज़रूरत नहीं है. बता दो कि यार मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ी, इतना मज़ा नहीं आया, मगर सीख बहुत कुछ किया, तो अगली बार भी आ ही जाएंगे, है ना? ऐसा ही है. नहीं, मुझे तो चैलेंजेस एक्सेप्ट करने का शौक है और मैं बिल्कुल करना चाहूँगा. नेक्स्ट अगर कोई इवेंट होता है तो उसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहूँगा. पार्टिसिपेट करना चाहोगे एज अ डेलीगेट? एज अ डेलीगेट आई होप. वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा, वैसे कितने साल से इस तरह के इवेंट्स में तुमने पार्ट लिया हुआ है? ये मेरा 3rd टाइम है. और 4th और 5th टाइम करने का भी प्लान है? बिल्कुल, अनलिमिटेड. और इस तरह के इवेंट की इम्पोर्टेंस क्या लगती है तुम्हें? इम्पोर्टेंस ये है कि एक पूरा वर्ल्ड के लोग आगे एक जगह जमा होते हैं और उनसे कुछ सीखने को मिलता है और काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं और सबके साथ इंटरेक्शन होता है और काफ़ी चीज़ें मतलब सीखने को मिलती हैं इसमें. हमारे साथ हैं मतियास लिजुल, हु इज़ फ्रॉम फ्रांस, एंड यहाँ पे कमेटी के चेयर भी हैं. सो मतियास, how do you think the event is going and how are the delegates performing? I mean, it's wonderful. About the delegates, honestly, I'm surprised. I know that we have a lot of beginners, which isn't a bad thing actually. And I consider that we are all here to learn and spend a good time together. And yeah, as I said, I'm really surprised about the level that we have here. They really implied themselves in order to create something, and we already have like a very, very fruitful discussions ongoing. And what do you think that is the potential of the youth when it comes to being future leaders? Well, I would think of such an event to be a training opportunity for the youth, because we all know that the youth is the future of the world, but in other terms, I would say that we young people have regards and claims about the world and how we want it to be that are different from the previous generations. And so with these claims, we can propose new things. We have different ways of thinking the world, and like this
like how to say, this originality that comes from the youth is something that is just priceless. And because I'm from Pakistan, I have to ask this question: how are the Pakistani delegates performing? Very good, actually. We had a lot of Pakistani delegates. 30 delegates are from Pakistan in this conference. Yeah, So- and actually, and not only Pakistanis, but Yes. everybody is very Everybody's involved Yeah. in the conference, and it's such a good time. And also outside of the session, it's just such an opportunity to meet new people from all over the world. And it was a great opportunity and a pleasure to meet you. Thank you very much, Mathias. It was a Thank you. pleasure talking to Merci you. beaucoup. Merci beaucoup. तो अब हम कॉन्फ्रेंस के एंड पे यहाँ मौजूद हैं. पीछे मेरे कल्चरल अब इवेंट चल रहा है. तो हमारे साथ मौजूद हैं जवेरिया, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम शायद इस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज़्यादा रोशन किया है. बेस्ट डेलीगेट ये अपनी कमेटी में तो जीती हैं, लेकिन साथ में ओवरऑल कॉन्फ्रेंस का भी जीती हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. ये आपका पहला ऐसा इवेंट का एक्सपीरियंस है जी, मैंने इससे पहले कभी मन किया नहीं है, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था. और अभी से आप जीत गई हैं. मतलब ये तो इतना स्टैंडर्ड हाई सेट करने का कोई सीखे ये तो ये आपसे सीखे. मतलब पता चलना चाहिए दुनिया को कि पाकिस्तान टॉप पर है और रहेगा इंशाल्लाह. पहली बार में मैंने आपको ऑब्जर्व किया था कमेटी में, तो मुझे उस वक्त अंदाज़ा तो था दैट मुझे तो खैर आप बहुत एक्सपीरियंस्ड लग रही थी. मैंने आपसे बात भी की उसके बाद, तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि आपका पहला एक्सपीरियंस है. सो हाउ डज इट फील? इट फील्स वेरी गुड. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो है हमने पाकिस्तान को इतना मतलब हाई स्टैंडर्ड पे रखा है और पाकिस्तान बेस्ट डेलीगेशन का अवार्ड जीता है. होपफुली हम आगे भी ऐसा कर सकें, और मैं चाहूँगी कि बाकी लोग भी इस तरीके से पार्टिसिपेट किया करें ताकि उनके कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स अच्छे हों. तो आप बेस्ट डेलीगेट जो जीती हैं उसमें आपको अब अगली कॉन्फ्रेंस का फ्री ट्रैवल वगैरह भी मिला हुआ है, और साथ में ओवरऑल बेस्ट डेलीगेट जीतने के लिए अब आप नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटेरिएट में होंगी. सो कितना, हाउ मच डू यू लुक फॉरवर्ड टू इट? आई एम एक्सट्रीमली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि जो है पहले कभी इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं किया है. सो आई एम होपिंग कि जो है इस तरीके की कोई चीज़ मुझे एक्सपीरियंस हो, ताकि अभी तो मैं वहाँ पे थी, पार्टिसिपेंट्स में थी. नाउ आई एम गोना बी वन ऑफ द काउंसिल मेंबर्स. तो ऑब्वियसली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. नेक्स्ट टाइम आप शायद मुझे जज कर रही हो, तो मैं अभी से सोर्स लगवा रहा हूँ कि प्लीज़ हेल्प मी आउट. ओके, थैंक यू वेरी मच, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. तो जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इवेंट अब ख़त्म हो गया है. पोस्ट इवेंट लोग तस्वीरें ले रहे हैं बस, और हमारे साथ मौजूद है द पर्सन जिसने ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, मिस तैयबा. सो कैसा लगा आपको इवेंट, किस तरह से मैनेज हुआ? अस्सलामुअलैकुम ऑल ऑफ़ यू. एक्चुअली थोड़ा सा टफ था. डेफिनेटली यू नो दैट ऑर्गेनाइज करना इज़ अ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड थिंग, बट ओवरऑल इट वाज अ रियली गुड एक्सपीरियंस एंड वी हैव एंजॉयड अ लॉट. और होपफुली हमारी नेक्स्ट कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, तो यू विल सी दैट कि हम किस तरीके से डेलीगेशंस को जो है वो इनवाइट करते हैं, फिर एक्सेप्टेंस प्रोवाइड करते हैं उनको, और उससे पहले हम उनकी जो है फॉर्म्स का एक रिव्यू करते हैं. सो येस, इट वाज टफ, बट एनी हाउ नॉट टायरिंग एंड टफ, बट वी डिड इट. तो इस इवेंट में मैं भी वॉलंटियर था, तो मैंने किस तरह से काम किया, ज़रा बताएं. I must say you are one of the most prominent volunteer, not the volunteer. I won't say you are volunteer. You are the host of the event, of course, and your performance was outstanding. और मुझे बिल्कुल इस चीज़ का कोई regret नहीं है या कुछ भी नहीं है कि I have chosen you. So yeah, it was perfect with you. थैंक यू वेरी मच. एंड आई हैव टू से कि ये इवेंट बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हुआ है, एंड जो नेक्स्ट इवेंट होगा मार्च में उसमें भी मुझे डेफिनेटली आना है. थैंक यू वेरी मच. और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपनी टीम चेंज ना करें, बिकॉज नाउ यू आर द पार्ट ऑफ द कोर टीम. सो येस, यू विल बी इन फॉर द मार्च इवेंट विच विल हेल्ड इन इस्तांबुल, टर्की. तो इस इवेंट में तो हमने देखा कि कुछ 140 पार्टिसिपेंट्स थे फ्रॉम 35 टू 40 अलग अलग कंट्रीज से. तो अगले इवेंट को मैं सोच रहा हूँ कि इससे भी बड़ा होगा. ऑब्वियसली प्लान तो यही होता है, तो उसका क्या इरादा है? प्लान तो उससे भी कुछ बड़ा ही है, बिकॉज हमारा कुछ इस तरीके का इरादा है कि हम कोई हिस्ट्री में अपना नाम हमारा आए कि येस, वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड. तो हमारे पास अब इस वक्त जो है वो 80 से ज़्यादा डेलीगेट्स हैं मुख्तलिफ ममालिक से, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम नेक्स्ट इवेंट को जो है वो ऐसा बनाए कि दुनिया उसको याद रखे. एंड होपफुली ऐसा ही होगा. थैंक यू वेरी मच तैयबा, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. हमारे साथ मौजूद हैं साखिर अली कुरैशी, जिनकी वजह से ये इवेंट हुआ है. इस इवेंट के ये प्रेसिडेंट हैं और ऑर्गेनाइजिंग कंपनी ग्लोबलाइजन के CEO भी हैं. तो साखिर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि आपने एक तो ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया इस कैलिबर का, और हमें टाइम दिया बात करने के लिए. आपने इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करना कब स्टार्ट किया है? हमारी पहले कॉन्वर्सेशन हुई थी, बट कैमरा के लिए अगर आप बता सकें. मैंने बेसिकली
पहले मैं खुद अटेंड करता था. आई एम अटेंडिंग सिंस 2016 एंड आई स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग इन 2019. तो बेसिकली जब मैं एज अ डेलीगेट अटेंड कर रहा होता था तो हमेशा वी यूज टू वर्क ऑन रेजोल्यूशंस एंड वी ऑलवेज यूज टू सॉल्व इश्यूज. तो फिर मैंने सोचा कि जब हम लोग ये काम कर सकते हैं तो अभी तक यूनाइटेड नेशंस क्यों नहीं कर सका. जब यूथ ये काम कर सकते तो यूनाइटेड नेशंस क्यों नहीं कर सकी. तो फिर जब ये मैंने सोचा तो आई डिसाइडेड टू ओपन एन ऑर्गेनाइजेशन. And that is the mission of my organization, to train youth, to train future leaders जो बाद में United Nations में जाकर इसी तरीके से जिस तरह हम यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो वहाँ पे सॉल्व कर सकें and make this world a better place to live. और आपने मेंशन किया कि आप पहले खुद एक डेलीगेट के तौर पे इस तरह के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते थे, तो उस एक्सपीरियंस की कितनी इम्पोर्टेंस है जब इसी तरह के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने की बात आती है. वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. बिकॉज अगर आपको पता नहीं कि कमेटीज़ में हो क्या रहा है, आपको पता नहीं कि डेलीगेट्स किस बात पर डिबेट कर रहे हैं, तो आप मिशन ही नहीं अपना इस्टेब्लिश कर सकते, आप एक विज़न ही नहीं बना सकते. अगर उस तरीके से आप कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना शुरू करते हैं तो इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट फ्रूटफुल. बिकॉज you know when a company does not have a vision, जब कोई आपका गोल नहीं होता तो तब आप बहुत ही मिनिमम लेवल तक जा सकते हैं. बट इफ़ यू वांट टू एक्सपेंड ग्लोबली एंड अगर चेंज करना चाहें कुछ, अगर जैसे हम लोगों ने सोचा हुआ है कि फ्यूचर लीडर्स क्राफ्ट करके यहाँ पे हम लोगों ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर भेजने हैं ताकि जो फ्यूचर यूनाइटेड नेशंस इन नेक्स्ट 2 decades दे आर एबल टू सॉल्व इश्यूज़. तो उसके लिए बीइंग अ डेलीगेट इज़ वेरी नेसेसरी. और मैं भी कभी कभार इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा जो मुश्किल होती है ऑर्गेनाइजेशन में वो होते हैं स्पॉन्सर्स ढूंढना. तो आप कैसे कर लेते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए. बिकॉज ऑब्वियसली इस तरह के होटल में इस तरह की सेटिंग के साथ काफ़ी पैसे तो लगते ही होंगे. सो बेसिकली पहली 2-3 कॉन्फ्रेंसेस यू हैव टू मैनेज इट योरसेल्फ. वंस यू हैव वीडियोस, वंस यू हैव समथिंग टू शो, कुछ दिखाने के लिए आपके पास हो कि ये कॉन्फ्रेंस हम करा रहे हैं, ये इम्पैक्ट इसके ऊपर जा रहा है लोगों के ऊपर, ये हमारा मिशन है. एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव अचीव्ड अप टिल नाउ. लाइक इन दिस कॉन्फ्रेंस वी हैव 40 nationalities. दैट इज़ अ बिग नंबर. 14 या 40? 40. लेकिन मज़े की बात ये है कि इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस के अंदर 40 nationalities तो हैं, लेकिन एक नेशनैलिटी सब पर भारी है इस वक्त, एंड दैट इज़ पाकिस्तान. Because we have more than 30 delegates from Pakistan, like it's like 35 to 40, right? So in that scenario, Pakistan is like ruling the conference, and with other 40 nationalities, we were able to achieve. हमने जैसे resolution pass की पैलेस्टीन और इसराइल की conflict के ऊपर. तो जब 40 nationalities मिल के एक बात कर रही हैं, तो UN में इस तरह क्यों नहीं हो रहा है? क्यों इस तरह हमेशा UN के अंदर issues ऐसे ही रह जाते हैं, कभी सॉल्व नहीं होते. यू हैव इंडिया एंड कश्मीर इशू, यू हैव इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, यमन वॉर, वी हैड आइसिस इन इराक. ये सारे इश्यूज़ हम लोग तो सॉल्व कर लेते हैं बिकॉज आई अटेंडेड एज डेलीगेट, आई ऑर्गेनाइज कॉन्फ्रेंसेस, तो हम हमेशा ये सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन यूएन में नहीं सॉल्व होते. तो दैट्स व्हाट वी वांट टू चेंज. थैंक यू वेरी मच. इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. एंड जो आपका अगला मार्च में कॉन्फ्रेंस हो रही है इस्तांबुल में ही है, तो मेरा पूरा प्लान है कि मैं रजिस्टर करूँ. कैसे रजिस्टर करूँ प्लीज़ ये ज़रा बता दें. You have to go to our website. It's www.futureleadersmun.org and you can register for the event. उसके बाद our secretariat will review the application and then will send you an acceptance if they think you are up to the mark. लंच खुल गया है. सो वर्ल्ड यूथ मॉडल यूनाइटेड नेशंस इस्तांबुल टर्की से दिस इज़ इलियान अल करीम साइनिंग ऑफ. अब मैं चला खाना खाने.